Good afternoon, everyone. Now we are going to learn financial statements. So then, what is the financial statement? The financial statement क्या है? Financial statement, also known as the balance sheet, इसे बैलेंस शीट भी कहते हैं या वी कैन से हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट या बैलेंस शीट कंसिडर्ड एज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट. So in this financial statement, we will learn statement of financial positions or balance sheet, statement of the financial performance or income statement, statement of the check in equity, statement of the cash flow and noted to the financial statement. ये सारे जो कैश फ्लो, चेक, change equity, financial performance, income statement and balance sheet. These are financial statements. तो start करते हैं. Statement of the financial positions. So definition of the statement of the financial positions. Statement of financial positions. We often called it balance sheet. ये जो फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट है इसे जनरली हम बैलेंस शीट कहते हैं. It reports assets, liability, and equity with the given data for a specified period. ये क्या क्या रिप्रेजेंट करती है या रिपोर्ट्स करती है? आपका एसेट्स, आपके पास कितने एसेट्स हैं, आपकी लाइबिलिटी, आपकी जिम्मेवारी दायित्व कितना पे करना है, एंड इक्विटी विद द गिवन डेटा फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. सपोज दैट किसी की एनुअल बैलेंस शीट बनती है तो एनुअल पीरियड के लिए, क्वार्टरली बनती है तो देन क्वार्टरली, एंड हाफ ईयरली बनती है देन हाफ ईयरली पीरियड्स के लिए. The statement of the financial positions only report the financial information at the last day of an accounting period. Means ये जो financial statement है इसमें only financial positions या financial transactions और financial ट्रांजैक्शन इंक्लूड होती है, ना कि अदर्स, और वो भी लास्ट अकाउंटिंग डे तक. जैसे कि सपोज दैट हमारा अकाउंटिंग पीरियड है जो इंडियन ये जो फाइनेंशियल ईयर है इंडियन गवर्नमेंट का, फर्स्ट मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च. सो इसमें 31 मार्च तक की ऑल ट्रांजेक्शन यदि फाइनेंशियल पीरियड मान लिया जाए इसे, सारे कुछ रिपोर्टेड हो. तो नेक्स्ट है कि what is the general equation of the financial statement or balance sheet. तो दैट ये सिंपल इक्वेशंस हैं which deal with the balance sheet या बैलेंस शीट का जैसे कह सकते हैं कि सेंट्रल आइडिया या सेंट्रल कंटेंट क्या है. बैलेंस शीट होता है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी. मीन्स जो आपके एसेट्स है नॉर्मली इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी. जो आपने शेयर वगैरह इशू किए हुए हैं, जो आपकी लायबिलिटी है वो उसको इक्वल होना चाहिए, और होते भी नॉर्मली यही है. सो दैट इज द फाइनेंशियल, और ये एक गुड फाइनेंशियल पोजीशन का इंडिकेटर भी है. सो इफ योर एसेट्स मोर देन लायबिलिटी दैट यू विल बी प्रॉफिट में, और इफ योर एसेट्स लेस देन लायबिलिटी यू विल बी लॉस. You will be lost. So क्योंकि हमारी बैलेंस शीट, अवर बैलेंस शीट या कंपनी बैलेंस शीट sheets
has the two particular things like assets and liability. Then what is assets? Yeah, asset sections, which items contained in asset side section. So asset sections like assets आपका stocks है, bonds है, real estates है, investment आपने किया है, private equity purchase की है, commodity purchase की है, cash है. These are a form of the assets. So now भाई assets क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. So it is assets or the resource that the company can use to generate revenue. Assets एक रिसोर्स है जिसके थ्रू कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है या जिसको यूज करके कंपनी के पास रेवेन्यू आता है. There are two types of the assets. One is current assets, another is non-current assets. Current assets or non-current assets. Assets include cash, account receivables, receivable जो आपको मिलना है, इन्वेंट्री जो आपके पास सामान, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स है, फिक्स्ड एसेट्स लाइक आपकी मशीन, प्लांट, दैट इज द फिक्स्ड एसेट्स एंड अदर एसेट्स. इसके अलावा भी जो बच गए दैट इज द अदर एसेट्स. Liability sections. So now what is liability? So liability sections liability are the debt obligations that the company owes others, companies, individuals and institutions. Means in other words we can say liability is the responsibility of the of payment. यानी कि ये एक लाइबिलिटी है. मीन्स लाइबिलिटी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको पे करनी है, पेमेंट करना है. तो किसको किस करना है? अदर्स कंपनी. मीन्स यदि आपकी किसी कंपनी ने शेयर्स परचेज किए होंगे तो आप उसे पे करोगे, या किसी ने आपको कुछ डेट वगैरह दिया होगा, कर्ज वगैरह, तो आप उसे पे करोगे. इंडिविजुअल्स कोई पर्सन हो सकता है जिसने आपने इन्वेस्ट किया है, लाइक या शेयर होल्डर्स या आपके जो भी क्रेडिटर्स, वो डेबिटर्स वगैरह. और इंस्टीट्यूशंस, कोई इंस्टीट्यूशन होता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या कोई भी इंस्टीट्यूशन आपका इन्वेस्ट कर सकता है. एग्जाम्पल्स और कमर्शियल लोन्स, जैसे कि कमर्शियल लोन्स दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द लाइबिलिटी. सपोज दैट मैंने कमर्शियल लोन लिया है तो देन इट इज माय लाइबिलिटी. पर्सनल लोन, आपने कोई पर्सनल लोन लिया दैट इज द लाइबिलिटी. मॉर्गेज जो गिरवी रख के लोन लेते हैं दैट इज द मॉर्गेज लोन या मॉर्गेज. There are two types of the liability: current liability and a non-current liability. As a assets, our assets is current and non-current, so liability be current and non-current liability. तो इक्विटी सेक्शन, अब इक्विटी सेक्शंस में क्या होता है? जैसे हमारा ना इक्विटी ये होता है कि जो हमारी बैलेंस शीट इक्वेशंस है दैट इज एसेट्स इक्वल टू करंट लायबिलिटी प्लस इक्विटी. देन व्हाट इज इक्विटी सेक्शन? सो equity sections comprise of the owner of the company, ownership of the company. Means कंप्राइज मीन्स है इंक्लूड करते हैं, जोड़ते हैं ओनरशिप ऑफ द कंपनी, कि भाई जो कंपनी का मालिकाना हक है वो किस किस के पास है, दैट इज द इक्विटी. फॉर एग्जांपल अ कॉर्पोरेशन वुड लिस्ट द, यानी कि एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग किसी भी कॉर्पोरेशन में इक्विटी क्या क्या हो सकता है या क्या क्या इंक्लूड करते हैं. कॉर्पोरेशन वुड द लिस्ट कॉमन स्टॉक जो आपके कॉमन स्टॉक है, प्रीफर्ड स्टॉक्स जो आपके प्रीफर्ड स्टॉक्स है,
additional paid in capital, treasury stocks, and retained earning. For the non-profit accounting, this section of the statement of the financial position is called net asset sections. ये जो sections है या for the non-profit accounting, इस sections को हम net asset sections भी कहते हैं. Statement of the comprehensive income. Next is statement of the comprehensive income. So breaking down the comprehensive income, summary of all resources of the revenue and expenses, means comprehensive income में क्या क्या करते हैं, summary of all resources of revenue and expenses. फर्स्टली जब हम कंप्रहेंसिव करेंगे या कंपेयर करेंगे तो देन हम सबसे पहले फर्स्टली वी में या वी ड्रॉ द सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस कि भाई आपके रेवेन्यू का सोर्स क्या है और आपका एक्सपेंसिव क्या होगा. एम ऑफ प्रिपेयरिंग एन इनकम स्टेटमेंट इज टू फाइंड कंपनी नेट इनकम. Here we can say the objective of the company financial position statement या income statement is to find the net income of the company. यदि हम कंपनी का इनकम देखना चाहते हैं तो we must read the income statement of the company. So it is entail the items such as the कौन कौन से items इसमें include होते हैं, entailed होते हैं, एंटेल्स होते हैं इनकम स्टेटमेंट में. गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम द पेंशन, जो भी गेन और लॉसेज हो रहे हैं पेंशन से, दैट इज इंक्लूड द इनकम स्टेटमेंट. एडजस्टमेंट मेड टू द फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, जो भी एडजस्टमेंट बना है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन पे, कई बार आपको पैसा मिलता भी है, कई बार जाता भी है. सो ये आपको इनकम स्टेटमेंट शो करना है. स्टेटमेंट गेन्स एंड लॉसेस फ्रॉम द डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी गेन्स एंड लॉसेस हुए हैं फ्रॉम द डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट से, दीज आर इंक्लूड इन इनकम स्टेटमेंट. जर्नलाइज गेन्स और लॉस फ्रॉम द डेब्ट सिक्योरिटी. अब जो है ना, जर्नलाइज मीन्स अनरियलाइज, सॉरी जर्नलाइज नहीं, अनरियलाइज गेन्स और लॉसेस फ्रॉम द डेब्ट सिक्योरिटी. कई बार जो सिक्योरिटी है आपने जो दिए हैं उससे कई बार आपका लॉस या गेन आपने रियलाइज नहीं किया होता, उसका आपके पास एक्चुअल फिगर नहीं होती कि भाई ये श्योर है कि आप गेन में हो या लॉस में हो, बट उसका आपको पता नहीं होता या आपके हाथ में नहीं आता, तो इसको अनरियलाइज बोलते हैं. जब रियलाइज मीन्स होता है कि जब आपने कंफर्मेशन दे दिया कितना लॉस है या इतना हो, सो इसको हम इनकम स्टेटमेंट में शो करते हैं. Unrealize the gain and losses from the available sale and security. इसको भी हम स्टेटमेंट. यूज ऑफ a statement of comprehensive income. भाई स्टेटमेंट्स का comprehensive income स्टेटमेंट का यूज कहाँ. सो comprehensive income statement detailed revenue information या has the detailed revenue information. Comprehensive financial statement या कह सकते हैं income statement has the detailed revenue information. It is the analysis tools of the investor. क्योंकि investor read the या check the income statements या कह सकते हैं कि financial statement and take the various kinds of the decisions such as the investment decision या stock holding decision कि भाई अभी कंपनी का stock hold करना चाहिए या selling और purchasing decisions. So these decisions investor make on behalf of the income statements and financial statement. So limitation of the statement of the comprehensive income कि क्या क्या limitations होती है comprehensive income statement की.
सो मिस रिप्रेजेंटेशन बाय द बाइस्ड मैनेजमेंट, कई बार ऐसा होता है कि आपका अनट्रूथ या वी कैन से आपका जो लॉयर स्टेट वो होता है मैनेजमेंट, छोटा मैनेजमेंट जो होता है वो उसको जो है ना मिस रिप्रेजेंट कर देता है, आपके पास इनकम करना उसको ज़्यादा शो कर देगा, तो देन इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो जाएगा और वो अपना इन्वेस्ट करेगा। So miss that is the limitations. This is the limitations of the financial statement or comprehensive income statement. Difficulties in the making prediction, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट्स या कॉम्प्रहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम कोई भी ये आपको डिसीजन बना के नहीं देता, वो आपको प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि इन फ्यूचर में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए। सो इसको देखते हैं कॉम्प्रहेंसिव इन्वेस्टमेंट के बिहार पे कोई डिसीजन मेकिंग या प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता। फाइनल वर्ड, कोई एक एंड वर्ड नहीं दिया जा सकता कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है या इट इज द पॉसिबल। रिलेटेड टू द रीडिंग, रिलेटेड टू द रीडिंग, अब ये पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम है। सो कंटेंट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द कॉम्प्रहेंसिव इनकम, contents of the statement of the comprehensive income, कि comprehensive income statement में क्या क्या है। फर्स्ट है accumulated order comprehensive income, accumulated other comprehensive income, other comprehensive income को accumulated किया जाता है, means accumulated other comprehensive income reported to the equity section or the balance of the balance, means ये जो other एक्यूमुलेटेड इनकम है वो आपको बैलेंस शीट के इक्विटी सेक्शन में रिपोर्ट करना है या प्रेजेंट करना है। इनकम स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट इज वन ऑफ द मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब जो इनकम स्टेटमेंट है ये आपकी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम ATOI, ये भी आपका कॉम्प्रहेंसिव इनकम स्टेटमेंट में इंक्लूड होता है। आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम इवैल्यूएट अ कंपनी टोटल ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर द टैक्स। अब ये क्या करती है, जो आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम है, जब आपने टैक्स पेमेंट कर दिया तब इनकम को कंसीडर या इवैल्यूएट करती है, तो इसको भी आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम में इंक्लूड करते हैं। नेट ऑपरेटिंग इनकम, net operating income is a company income after operating expenses are deducted। जब आप ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि जब देखो आप कोई प्रोडक्शन करते हैं तो देन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन बहुत सारे एक्सपेंसेस आपके सामने आ जाते हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ द एक्सपेंसेस। सो बंदे को क्या करना होता है, बिजनेसमैन क्या करता है, या जो कह सकते हैं नॉट ऑपरेटिंग इनकम क्या होगा, जब आपने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकम में से या रिवेन्यू में से या जो प्रॉफिट है उसमें से रिमूव कर दिए तो देन आपके पास हो जाएगी नेट ऑपरेटिंग इनकम। सो नेट ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज द portion of organization incomes that is derived from activity not related its core operation। अब ऐसा कुछ इनकम होता है कि जो उसके कोर ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होती, तो देन ऐसी एक्टिविटी को हम बोलते हैं नॉट ऑपरेटेड इनकम। जैसे कि यदि हम बात करें जो ये आपका शुगर फैक्ट्री, जैसे शुगर फैक्ट्री में आपका जो उससे जो स्क्रैप निकलता है गन्ने वाला, शुगर केन वाला, जिसे ऑयल या पता नहीं क्या बोलते हैं, तो देन वो उसका जो है ना कंपनी ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है, उसको वे सेल कर देते हैं, उससे कंपनी को इनकम हो जाती है। एक जो इसमें वो निकलता है उसका जो लिक्विड निकलता है सीरा जिसे बोलते हैं, वे भी कंपनी का पार्ट, उसका ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, उससे भी कंपनी को इनकम हो जाती है। एक जो उसके ऊपर एक वो निकलती है, एक जैसे लेयर निकलती है उसकी, जो गन्ने के जूस के ऊपर से निकलता है उसको वेस्टेज, उससे भी कई आपका चूना वगैरह बनता है। सो दैट इज द नॉन ऑपरेटिव
ऑपरेटिंग इनकम, जो आपके ऑपरेशंस के वाली इनकम नहीं, वो अदर इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम दैट कमिंग फ्रॉम द इंटरेस्ट पेमेंट, तो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, उसका इंटरेस्ट पेमेंट आपको रिसीव हुआ, दैट इज द इन्वेस्टमेंट इनकम। डिविडेंड्स, आपने कहीं किसी कंपनी का में बॉन्ड्स या जो भी शेयर वगैरह परचेज करें, वहाँ पे डिविडेंड्स मिलेगा। कैपिटल गेन्स collected upon the sale of the security or other assets, आपने कोई सेल सिक्योरिटी को सेल करा है अपनी या एसेट्स को सेल किया है, तो देन इस पे जो कैपिटल गेन्स होगा दैट इंक्लूड इन द इनकम स्टेटमेंट। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो, तो भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। सो सो बच्चा कैश फ्लो स्टेटमेंट, या हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो मन के मीन्स मिला है कैश प्लस फ्लो। कैश मीन्स लिक्विड एसेट्स या जैसे मनी और कैपिटल। फ्लो मीन्स एक्सपेंसेस एंड रिव्यू, कम एंड आउट, जैसे आना, कम एंड गो कर सकते हैं कि आना और जाना। सो कैश फ्लो मीन्स होता है मैनेजमेंट ऑफ द कैश या फ्लो ऑफ द कैश या मनी। सो दे स्टेटमेंट्स इंक्लूड द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहाँ पे कैश खर्च हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंशिंग एक्टिविटीज, कहाँ पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया, और फाइनेंसिंग, कहाँ से आपने फाइनेंस या कर्ज लिया। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कंटेंट, statement of cash flow is one of the three key financial statements that reports of the cash generated and spent। Means कैश फ्लो स्टेटमेंट एक, जो आपके तीन स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनमें से एक स्टेटमेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स एंड इट डील विद, या कैश फ्लो स्टेटमेंट डील विद कैश जनरेशन एंड स्पेंड। जैसे हमने कहा ना गो एंड आउट मीन्स कम एंड गो, या गो कम एंड आउट मीन्स कम मीन्स जो इनकम आ रही है तो जनरेट हो गया कैश, एंड स्पेंड मीन्स खर्च, स्पेंड मीन्स खर्च। Statement of the cash flow acts as a bridge between the income statements and the balance sheet। अब ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये एक ब्रिज है, पुल है बिटवीन द इनकम स्टेटमेंट्स एंड बैलेंस शीट। सो ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्वेरी प्लीज आस्क मी।